Hello everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to share with you a second lecture of newly added topic, that is membrane separation in the mass transfer subject for GATE 2021. So till now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it, otherwise you will not get any type of notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numerical, short notes, and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So without further ado, let's get started with the lecture. So student, as we know that the membrane processes are accepted unit operation for the variety of separation in the industries like chemical industries. So these processes are driven by the pressure, concentration and the electric forces, and this membrane is separated by the or according to their driving force, molecular size and the types of operation. So basically the membrane processes, membrane separation is required or involves the membrane which is permeable or maybe it will be a semi-permeable. Okay, so we have to differentiate according to their driving force, molecular sizes and types of processes, okay, operations. So in order to driven the solute and the solvent through the membrane, we definitely require some kind of driving force. So basically the driving force are the variety of form, but in our case the main true driving force is the differential chemical potential. Hence we also know that the chemical potential cannot be measured directly, so that we are going to express the driving force into the measurable quantity. So I am here mentioning you some of the driving force which cannot be measured directly. One of them is the transmembrane or hydrostatic pressure, electrochemical pressure, pH gradient, osmotic pressure. So these are some quantity or driving force which cannot be measured directly. Okay. So if we talk about the potential driving membrane, we have electrodialysis, electroosmosis, and if we talk about the concentration driving membrane, we have dialysis, and lastly we talk about the pressure driven membrane, we have microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis. Okay, so this part is very important for our GATE purpose, तो हम यही part हम बहुत अच्छे से discuss करेंगे. So now we talk about the principal characteristic of the various commercialized membrane of the separation process, which is specified on the basis of 7 aspects. That is, first one is the separation goal, second one is the nature of species retained, third one is the nature of species transported through the membrane, fourth is the major and minor species of the feed solution transported, fifth one is the driving force, and sixth one is the mechanism of transport, and last one is the phase of feed and परमिएट स्ट्रीम. तो ये सारे जो पॉइंट है 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें डिसाइड करने में इजी दिलाते हैं ये सारे पॉइंट्स, जो कि हमें मेम्ब्रेन किस टाइप का चाहिए और मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को पॉइंट में रखना चाहिए. तो ये हो गई इसकी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको सेपरेशन प्रोसेस यानी मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेसेस एक्सप्लेन कर दूंगी. उससे पहले जो मैं आपको एक चार्ट में सिर्फ सिंपली आपको बता दूंगी, जो प्रेशर ड्रिवन मेम्ब्रेन है उसके जो 4 कंपोनेंट हैं, जो कि 4 पॉइंट्स हैं लाइक मेम्ब्रेन, माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नैनोफिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस. तो उसी को ये जो है पूरी गेट में आपके पॉइंट आउट करके बताया गया है कि ये क्या चीज़ है. तो इसको पॉइंट में रखते हुए मैं आपको एक फिगर में एक्सप्लेन कर दूंगी कि इनका वर्क क्या होता है, ताकि आपको सिंपली एमसीक्यू और जो होता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन करने में इजी हो. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. जैसे कि हमारे पास पता है हमें कि रॉ वाटर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है. लाइक वाटर में मोनोवेलेंट आइंस प्रेजेंट होते हैं, मल्टीवेलेंट आइंस प्रेजेंट होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. सपोज मैं सबसे पहले ले रही हूँ माइक्रोफिल्ट्रेशन
फिल्ट्रेशन, ये हमारा सपोज एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन में मैंने क्या किया, एक रॉ वाटर डाला। तो रॉ वाटर डालने में हमारे पास सबसे पहला कौन सा है, माइक्रो फिल्ट्रेशन मैंने चूज किया। तो अगर मैं माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट करूंगी रॉ वाटर को, तो वो जो है रिटेन कर, वो पास थ्रू कर देगा जो मेम्ब्रेन है वाटर मॉलिक्यूल्स को, मोनोवैलेंट आयंस को, मल्टीवैलेंट आयंस को, वायरसेस को, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों को तो ये अपने थ्रू पास आउट कर लेगा, लेकिन ये रिटेन और अपने में रिटेन कर लेगा क्या चीज़ को, बैक्टीरिया को और सस्पेंडेड सॉलिड को, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी वाटर मॉलिक्यूल पास थ्रू हो जाएगा, मोनोवैलेंट आयंस पास थ्रू हो जाएगा, मल्टीवैलेंट आयंस पास थ्रू हो जाएगा, लेकिन ये रिटर्न करेगा और रिजेक्ट कर देगा किसको, वायरसेस को, बैक्टीरिया को और सस्पेंडेड सॉलिड्स को, ठीक है। अब हम बात करते हैं नैनो फिल्ट्रेशन की। नैनो फिल्ट्रेशन में भी वाटर मॉलिक्यूल्स पास थ्रू हो जाएगा, मल्टीवैलेंट आयंस पास थ्रू हो जाएगा, मोनोवैलेंट पास थ्रू हो जाएगा, और मल्टीवैलेंट आयंस की जब हम बात करेंगे तो वो पार्शियली जो है मल्टीवैलेंट आयंस को पास थ्रू होने देगा और कुछ अमाउंट वो जो है उसको रिटेन कर लेगा, ठीक है। तो ये पार्शियली यहाँ पे रिटेन कर लिया और पार्शियली पास थ्रू हो गया, लेकिन ये वायरस को रिजेक्ट करता है, बैक्टीरिया को रिजेक्ट करता है और सस्पेंडेड सॉलिड को रिजेक्ट करता है। अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें उस केस में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को पास थ्रू होने देगा, साथ में मोनोवैलेंट को रिजेक्ट करेगा, मल्टीवैलेंट को रिजेक्ट करेगा, वायरस को रिजेक्ट करेगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिजेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को रिजेक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस वर्क करता है। अब आप देखेंगे कि जो ये सीक्वेंस है माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस का, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सीक्वेंस है वो किसके है, पोर साइजेस के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया है। तो मतलब क्या है, माइक्रो फिल्ट्रेशन का सबसे बड़ा पोर साइज होगा कंपेयर टू रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइक्रो फिल्ट्रेशन is greater pore size according to pore size of the microfiltration is greater than the ultrafiltration, is greater than the nanofiltration or is greater than the reverse osmosis, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट में ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें पास थ्रू हो रही है मेम्ब्रेन से और कौन सी चीज़ें रिटेन हो रही हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पोर साइज़ की भी, और दूसरी बात ये है कि पोर साइज़ के अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या सीक्वेंस है, पोर साइज़ किसका बड़ा है और किसका छोटा है, ठीक है। Now I am going to discuss with you all type of filtration in the tabular form so that you can understand or learn the concept of all filtration very easily, ठीक है। तो ये concept जो है इसमें मैं आपको definition बताऊंगी, limitations और इसके applications। तो ये जो अगर questions आएंगे तो आपको ये अगर tabular form में याद होगा तो आपको कोई भी difficulty नहीं होगी। तो start करते हैं microfiltration से। That microfiltration can be defined as a pressure driven flow through a membrane or other filter mediums is used to separate micron size of particle from the fluid। तो basically the microfiltration जो है वो pressure driving force पे apply वर्क करता है और साथ में जो separate करता है वो micron size के particle को separate करता है किसके, fluid से। ये आपको ध्यान रखना है, is used to separate the micron size particle from the fluids, ठीक है। अब जो माइक्रोफिल्ट्रेशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स में एक आता है डेड एंड फिल्ट्रेशन और दूसरा आता है क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन। जो डेड एंड फिल्ट्रेशन है वो बेसिकली सुटेबल फॉर डीलिंग विद अ सस्पेंडेड सॉलिड विथ लो सॉलिड कंटेंट, जिसमें सॉलिड कंटेंट जो होता है बहुत कम हो, उस टाइप के फिल्ट्रेशन में जो हम यूज़ करते हैं वो डेड एंड फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। ये सुटेबल नहीं होता, इंडस्ट्रियल पर्पज से ये सुटेबल नहीं होता है, ये लैब स्केल के लिए यूज़ होता है। जबकि हम क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल में मेजर पर्पस यूज होता है और ये जो वर्क करता है कैन बी यूज फॉर द मच हायर कंसंट्रेशन एज
the deposit on the membrane are swept away the parallel flow on the membrane surface। देखिए अब इसका जो डायग्राम है मैं आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देती हूँ कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब देख रहे हैं आप लोग को, देख रहे हैं जैसे डेड एंड फिल्टरेशन की बात करती हूँ, तो ये अगर फिल्टर लगा है तो इसके थ्रू जो है सॉलिड पार्टिकल रिटेन हो जाता है। जो मेजर जो इसमें मैंने बताया कि ये सुटेबल फॉर डीलिंग विद सस्पेंडेड विद अ वेरी लो सॉलिड कंटेंट, जितने भी थोड़े बहुत सॉलिड कंटेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन में अब्जॉर्ब कर लेता है और जो परमिएट होता है वो पास थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो इसमें क्या होता है, फ्लक्स जो है वो जो है डिक्रीज हो रहा है और केक थिकनेस जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, इन केस ऑफ डेड एंड में। जबकि हम बात करें क्रॉस फ्लो में, तो क्रॉस फ्लो में क्या पैरेलल मैकेनिज्म चल रही है, तो यहाँ से हमने फीड डाला। ठीक है, तो फीड डालने से क्या हुआ, जो हमारा जितना भी सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड है वो क्या होगा, मेम्ब्रेन में पैरेलली अटैच हो जाएगा और परमिएट जो रिटेनिंग जो लिक्विड रहेगा, जो फीड होगा वो पैरेलली निकल जाएगा और जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड है वो क्या मेम्ब्रेन में स्टिक हो जाएंगे, स्वैप अप हो जाएंगे पैरेलली। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। साथ में ही जैसे हमारा केक थिकनेस ज़्यादा नहीं बनेगी और फ्लक्स जो है वो भी ज़्यादा नहीं कम होगा। तो इस टाइप का ग्राफ है, ये हम आपको फिगर में समझा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं माइक्रोफिल्ट्रेशन पे। तो माइक्रोफिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट large molecules from the solvent. Second one is separate large molecules from the small molecules and large molecules from the molecules, other molecules। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है बेसिकली जो जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सेपरेट करने में यूज होता है। और साथ में जो इसका प्राइमरी मैकेनिज्म है वो क्या है, साइज एक्सक्लूजन पे है। क्योंकि देखिए आपको मैंने तीनों पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको, लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट, सेपरेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो उसमें क्या सब पे साइज का बहुत इस पे नोटिस रखा जा रहा है। तो इसका जो प्राइमरी मैकेनिज्म है वो किस पे है, साइज एक्सक्लूजन पे है, एज कंपेयर लाइकवाइज ऑफ माइक्रोफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो है जो प्राइमरी मैकेनिज्म है, साइज एक्सक्लूजन बिटवीन द सॉल्यूशन मेम्ब्रेन and the operating process parameter, all the operating parameter can be also affected the प्रोसेस। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में ये हो गया, ये तीन टाइप के सॉलिड को रिटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए नैनो फिल्ट्रेशन की। नैनो फिल्ट्रेशन की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है वो हम आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो हाउ एवर द मेम्ब्रेन आर स्लाइटली मोर परमिएबल। जो इस केस में होता है जो हमारा मेम्ब्रेन है वो स्लाइटली मोर परमिएबल है, हेंस अगर ज़्यादा परमिएबल होगा इसका मतलब क्या होगा, वो लेस प्रेशर रिक्वायर्ड करेगा डिज़ायर सेपरेशन के लिए। ठीक है, तो नैनो फिल्ट्रेशन में क्या हो गया कि ये सिमिलर टू रिवर्स ऑस्मोसिस, इट इज़ मोर परमिएबल एंड इट रिक्वायर्ड लेस pressure for getting the desired separation। ठीक है, it separate and also nanofiltration separate जो है एट मॉलिकुलर लेवल, ये जो है सेपरेशन कर रहा है किसके, मॉलिकुलर लेवल पे, और रिमूव ऑल द सस्पेंडेड सॉलिड एंड नॉट डिसॉल्व सॉलिड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे पॉइंट पे। तो जो ये नैनो फिल्ट्रेशन है मैंने बताया कि आपको ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू द रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इट स्पैम्स द गैप इन बिटवीन द पार्टिकल साइज बिटवीन द रिवर्स ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो इसकी जो रिवर्स ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस की जो मॉलिक्यूल्स का गैप है उसके बीच में आ जाता है, जो उसको स्पैम कर देता है। दैट्स व्हाई वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ अल्ट्रा ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इन दोनों के नाम को कंबाइन करके भी हम इसको बोलते हैं, दैट इज नैनो फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ अल्ट्रा ऑस्मोसिस। ठीक है, now come to the reverse osmosis. So before going to talk about the reverse osmosis, first we discuss about what is osmosis. ये आप lower standards में पढ़ चुके हैं कि osmosis is the natural process, okay, or where the water passes through the membrane from side with a lower solute concentration to the higher solute concentration
until the osmotic equilibrium is maintained or reach। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि until the osmotic pressure is reached, यानी कि ऑस्मोसिस जो है एक नेचुरल फेनोमेना है जिसमें वाटर को पास थ्रू करते हैं मेम्ब्रेन से फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तब तक पास थ्रू करते हैं जब तक until we not get the osmotic equilibrium is reached finally, ठीक है। Now we talk about the reverse osmosis. In the case of reverse osmosis, we simply apply a mechanical pressure is applied to providing the pressure difference greater than the osmotic difference। ऐसा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे वहाँ से कि उस जो है हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूट को सॉल्वेंट को जो कि है वाटर को सेपरेट करना इजी हो जाएगा फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये आपके सामने जो डायग्राम मैं रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, जो आप डायग्राम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूबलेट है, यू ट्यूब है जिसमें हम वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है, ठीक है। यहाँ से हम कंसंट्रेशन हाईली कंसंट्रेशन सॉल्यूट है, यहाँ हम एक प्रेशर जो बेसिकली पहले जो डिफरेंस था लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन में और हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में, डिफरेंस को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन कर रहा था। अगर हम रिवर्स प्रोसेस की बात करें, रिवर्स ऑस्मोसिस की, तो हमने यहाँ से राइट हैंड साइड से जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट था वहाँ से हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से क्या हुआ कि जो है वो उसने ऑस्मोटिक प्रेशर को ओवरकम कर लिया और जो बेसिकली द सेपरेशन जो सॉल्वेंट का सेपरेशन था सॉल्यूशन में से वो इजी हो गया। Now we discuss about the other point of the pressure driven membranes, that is first we talk about the microfiltration, that the transmembrane pressure, it required transmembrane pressure ranging from 1 to 50 psi used as a driving force. In the case of ultrafiltration we use 10 to 100 psi, and in the case of nanofiltration we use 40 to 200 psi. If we talk about the application of the each filtration, let's start with the microfiltration. The application is, it is used for the cell harvesting from the bioreactors in the case of bioreactors, and the second one is the water purification. Third is the removal of the cell from the fermentation medium, and the fourth is air filtration. Fifth is the industrial wastewater treatment. Okay, in the case of industrial water treatment, wastewater treatment. If we talk about the applications of the ultrafiltration, in the case of ultrafiltration, first application is that the concentration of solute by the removal of solvent, we use the ultrafiltration process. And in the case of second point is the purification of the solvent by the removal of solute. Third is the fractionation of the solute, and fourth is difiltration, removal of salt and other low molecular weight compound from the solution of micromolecules. तो ये सारे इसके applications हो गए। अब बात करते हैं नैनो फिल्ट्रेशंस की एप्लीकेशन की। तो इट इज़ यूज फॉर द सी वाटर डाइलेशंस। Second one is concentrated sugar classification, sugar stream in the sugar industries, and the third one is deacidification of the whey during the cheese milk production. Fourth one is the recovery of the dye in the textile industry. Fifth is the separation of the heavy metals, and the sixth is this removal of sulfate, phosphate, and nitrate, and etc. तो these are the application of the nanofiltration. अब बात करते हैं reverse osmosis की। तो reverse osmosis process allows selective process of the particular species. So selective process of the particular species like solvent, while other species retain, like other species are solute or is retained partially or is completely retained on the membrane, ठीक है। तो next point is the solute separation and solvent permeability are the membrane characteristics, and characteristics are depend upon the membrane material and the strength of the structure of the membrane layers. If we talk about the applications of the reverse osmosis, it is used for the sea water dilations, wastewater treatment, ultra pure water purifications. तो ये सारे इसके applications हो गए।
एक डायग्राम देख लेते हैं जिसमें आपको सिलेंड्रिकल वेसल दिख रहा होगा, उसमें क्या हो रहा है, प्योरिफिकेशन हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस एंड फिर रिफाइनिंग हो रही है। तो यहाँ से हम रॉ वाटर डाल रहे हैं तो वो हमें रिमूव कर क्या कर रहा है, प्योरिफिकेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या रिमूव कर रहा है, एल्गी, सस्पेंडेड सॉलिड, पैथोजन, माइक्रोमोलिक्यूल्स में स्मेल्स और सॉल्ट और मिनरल्स जो है सारे सेपरेट करके हमें ट्रीटेड वाटर यहाँ से मिल रहा है। तो बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फोर्स सॉल्वेंट थ्रू द आरओ मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स जो हो गए, मैंने आपको चारों मेम्ब्रेन के बारे में, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया। अब ये टेबुलर जो फॉर्म है मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगी, जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तो वो आप अपनी रिवाइज करने के लिए रख लीजिएगा। इसके बाद इसके फ्लक्स कैलकुलेशन सेपरेट जो है, फ्लक्स कैलकुलेशन के प्रोसेसेस को कुछ मुझे डाउट है कि पता नहीं इसके कैलकुलेशन न्यूमेरिकल बेस्ड ये पॉइंट टॉपिक सिर्फ रखा गया है सिलेबस में कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सारे न्यूमेरिकल्स के मेथड्स समझा दूं और फिर उसके बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊं, तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ कि आपको एक्सप्लेन करने में। मेरी वीडियो 20 से 30 मिनट की रहेगी, लेकिन एकदम बिल्कुल नॉलेजेबल होगी। आपका टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई मोटो नहीं होगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए बाकी स्टूडेंट के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा नॉलेज गेन हो सके और कम टाइम में वो ज़्यादा पढ़ाई कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गेट क्वालिफाई करें। तो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।